हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं लाई हूँ वेरी फन एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो बेसिकली इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। सो आई हैड गॉन टू लंडन फॉर माय मास्टर्स एंड मैंने क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन से अपनी मास्टर्स करी। सो बेसिकली इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट माय एक्सपीरियंस एट क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, व्हाई आई चोज दैट यूनिवर्सिटी, एंड लास्टली आई विल also be giving out some tips and tricks to crack your master's degree if you are a student who is planning to go for their masters this year or in the times to come. So I hope this video will be helpful for you. So basically in today's video I'll just be covering my experience at Queen Mary University of London, and last में towards the end of the video I'll be answering the most asked question. मतलब ये question मुझसे इतनी बारी पूछ लिया गया है कि मेरे कान थक गए हैं इस क्वेश्चन को सुन के. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट इज स्टडिंग अब्रॉड वर्थ इट और नॉट. मुझसे सबने क्वेश्चन पूछा है कि क्या बाहर जाके पढ़ना वर्थ इट है या नहीं. सो आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन वेरी ऑनेस्टली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग विच इज़ कि मैंने क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन से क्या परस्यू किया. सो बेसिकली इन द ईयर 2023 आई वेंट फॉर माई मास्टर्स एंड आई डिड माई मास्टर्स इन लॉ. उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. सो दैट वॉज अ 1 year कोर्स विच आई कम्प्लीटेड. आई हैड माई कॉन्वोकेशन इन द मंथ ऑफ जैन इस ईयर की, एंड नाउ फाइनली आई एम बैक टू इंडिया. So basically the reasons why I chose Queen Mary University of London is the first and the foremost reason is because of the rankings. I'm being very completely and very honest here कि मुझे rankings का दिमाग में एक चीज़ थी while I was finalizing my university for my masters. I wanted to do my masters from a very reputed university. मतलब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स नहीं करना चाहती थी. Like I did not want to venture into that entire study abroad experience by enrolling myself into कोई भी XYZ university. नहीं, I was very sure of the university that I wanted to get in, which was definitely QMUL, and I was lucky enough that I got admission in that university. So basically मेरा first and foremost reason, as I mentioned, was the rankings. Queen Mary University of London is known for its masters in law, specifically in my course intellectual property law. So Queen Mary का बहुत ज़्यादा नाम है IP लॉ के मास्टर्स डिग्री में. सो दैट वाज वन ऑफ द सोल रीजंस, लाइक वन ऑफ द मेन रीजंस, आई वुड से, नॉट सोल रीजंस, वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई चोज QMUL. Secondly, it is again one of the top listed universities when it comes to Russell Group universities. So that was another major reason why I chose QMUL. Next up, very important, the location. So जो main campus है Queen Mary University of London का, that is located in Myland, which is again a great campus. बहुत बड़ा campus है, सारी possible facilities हैं, बहुत fun and happening activities वहाँ पे होती रहती है. So that is a thing. But in my personal opinion, I was lucky enough कि मेरा वो main campus नहीं था जहाँ पे मुझे अपनी classes के लिए जाना था. But my law campus was in central London, for which I am really grateful कि मेरा कैंपस सेंट्रल लंदन में था एंड माइलैंड में नहीं था. दिस साउंड्स अ लिटिल स्ट्रेंज, बट एनी ऑफ यू हु हैज़ बीन टू लंदन, स्पेशली सेंट्रल लंदन, यू नो द वाइब ऑफ सेंट्रल लंदन, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वन ऑफ द मेन रीजन्स अगेन वाई आई चूज QMUL. मतलब मुझे था कि आई वुड रियली इन्जॉय माई टाइम स्टडिंग इन सेंट्रल लंदन बिकॉज वहाँ की वाइब्स आर superb, and वो आपको टिपिकल लंदन वाइब्स सेंट्रल लंदन में ही मिलते हैं. Like you step out of central London and those vibes are gone. So I was lucky enough कि मेरा जो law campus था that was in central London. Next up, during my research for universities and for the locations of universities, for the cities, for the countries, मेरा बहुत एक major reason to choose QMUL was because of the professors that teach in QMUL. तो QMUL के professors are absolutely amazing. They are so knowledgeable, they are so friendly, and they are so approachable. So best part ये है that as an international student आपको इनिशियली बहुत इनहिबिशंस होते हैं कि जब मैं किसी फॉरेन कंट्री जाऊंगी वहाँ के प्रोफेसर्स आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, whether you will be open, whether you will be able to open up with them or not, whether आपको like उनसे बात करने से पहले सोचना तो नहीं पड़ेगा whether they will treat you as nicely as they would treat any European or any Britisher.
सो दैट वाज वन ऑफ माय मेजर इनहिबिशंस एज वेल. बट मैंने प्रोफेसर्स के बारे में बहुत स्टडी किया था ऑनलाइन एंड आई केम टू नो दैट क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन हैज़ द बेस्ट प्रोफेसर्स एंड आई वाज क्वाइट राइट अबाउट इट बिकॉज द प्रोफेसर्स वर अमेजिंग व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी. दे वर सो फ्रेंडली, दे वर सो अप्रोचेबल, मतलब कोई भी डाउट होता था दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प. So that was again one of the major reasons why I chose QMUL. Next up, as I mentioned, professors के बारे में, along with the professors, I was also researching about the modules that the course at QMUL will offer me. So basically मैं वहाँ पे पढ़ रही थी कि मुझे क्या क्या subjects और क्या क्या modules offer होंगे by QMUL if I go for my masters in law उस यूनिवर्सिटी में. एंड आई रियलाइज दैट क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन में जितने मॉड्यूल ऑप्शंस हैं वो कोई और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है. इट हैज़ सच ग्रेट नंबर ऑफ मॉड्यूल ऑप्शंस एंड मोर दैन कि बहुत ऑप्शंस हैं टू चूज़ फ्रॉम. अनदर वेरी मेजर प्लस पॉइंट इज़ कि बहुत यूनिक मॉड्यूल्स हैं दैट यू गेट टू स्टडी. लाइक एज समवन जो लॉ पढ़ने गई थी एंड एज समवन जिसने बहुत बेसिक लॉ इंडिया में पढ़ा था, आई गॉट टू स्टडी लॉ which was linked to fields like music, linked to fields like fashion, then film, commercialization of IP. So you know मतलब मुझे ऐसी एस्पेक्ट ऑफ लॉ भी स्टडी करने को मिला थ्रू दीज मॉड्यूल्स जो आई डोंट थिंक मैं इंडिया में पॉसिबली कर पाती या आई थिंक मैं किसी भी और यूनिवर्सिटी में कर पाती अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आई वॉज लकी इनफ कि वहाँ के मॉड्यूल ऑप्शंस जो मैं सोच के गई थी कि आई विल बी एबल टू स्टडी समथिंग न्यू, दैट प्रूव्ड टू बी राइट बिकॉज वहाँ के मॉड्यूल्स इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड एंड आप QMUL कंसिडर कर रहे हो, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट एंड वहाँ पे आप देखोगे दैट देयर आर सो मैनी मॉड्यूल्स टू चूज़ फ्रॉम. लाइक आफ्टर अ पॉइंट यू आर लाइक मैं क्या चूज़ करूँ और क्या रहने दूँ बिकॉज एवरीथिंग ऑन द टेबल लुक्स सो टेम्पटिंग. मतलब आपका मन करता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ विच इज़ वेरी रेयर. मतलब पढ़ाई करने का मन किसका ही करता है यार. बट इफ़ यू लुक एट द मॉड्यूल ऑप्शंस एट QMUL you will definitely want to study and you will definitely want to know more about that module. So that was again one of the major reasons. I remember जब हमारी इंडक्शंस होती थी और हमारी ओरिएंटेशंस होती थी, so this was a very commonly asked question कि आपने QMUL क्यों चूज़ किया बाय आवर प्रोफेसर्स, बाय द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दैट इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड सबका ये कॉमन रिप्लाई होता था बिकॉज ऑफ द मॉड्यूल ऑप्शंस दैट QMUL ऑफर्स. So that was another reason why I chose Queen Mary University of London. Next up, as I mentioned कि जो लॉ कैंपस है दैट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल लंडन. सो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर पाती थी विद माई फ्रेंड्स बिकॉज सारी चीज़ें बहुत अप्रोचेबल डिस्टेंस पे थी. जितनी भी टूरिस्टी स्पॉट्स हैं बेसिकली वो बहुत अप्रोचेबल डिस्टेंस पर हैं. लाइक इट इज़ जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस आई वुड से. वो ट्रैफल्गर स्क्वायर हो गया, पिकाडेली सर्कस हो गया, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गई, रीजेंट स्ट्रीट हो गई. मतलब यू थिंक ऑफ एनी टूरिस्टी प्लेस दैट यू माइट रियली वांट टू विजिट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू लंडन, तो वो मेरे कैंपस से बहुत ज़्यादा क्लोज थी. सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स जो हो सकती थी व्हेन यू आर समवन हु इज़ गोइंग अब्रॉड टू स्टडी. स्पेशली जस्ट ऑपोजिट माई लॉ कैंपस एक बहुत ब्यूटिफुल पार्क था एंड मतलब दैट वाज सच अ ब्यूटिफुल पार्क एंड वहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत ऑफन हैंग आउट करते थे. लाइक इट वाज लाइक वहाँ पे सिर्फ जाके बैठ जाना, बेंचेस पे बैठना, ग्रास पे बैठना, दैट वाज एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ. सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैंने QMUL क्यों चूज़ किया. नाउ नेक्स्ट अप और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वाई आई चूज़ QMUL वॉज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी दैट इट ऑफर्स. एंड डाइवर्सिटी है बट इंक्लूसिव भी है यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली यू फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट कंट्रीज बट एट द सेम टाइम यू फील रियली इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस की सेटिंग. सो बेसिकली यू फील एट होम. लाइक आपको ऐसा नहीं लगता है दैट यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट कि आप अवे फ्रॉम होम हो एंड ऑल ऑफ दैट. सो द वाइब्स आर वेरी इंक्लूसिव. one more very important thing, of course I was an international student and मैं इंडिया से जा रही थी, so I had my own set of inhibitions. So एक बहुत plus point ये था that in my batch especially there were a lot of Indians which proved that Queen Mary University of London में बहुत Indians admission लेते हैं and at the end of the day you need your people. So वो बहुत बड़ा plus point था जब मैंने QMUL में admission ली.
कि बहुत सारे इंडियन लोग थे. दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे थोड़ा कम लेफ्ट आउट फील हुआ है, मुझे थोड़ा कम घर की याद आई. सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई चोज QMUL, because I knew that I'll be able to find my people once I start my classes at the university. So this was basically the जो main reasons थे जिसकी वजह से मैंने QMUL चूज़ किया were these which I just mentioned. So now I'll be talking about the tips and tricks to crack your master's degree at QMUL. So basically जितनी भी मैं tips देने वाली हूँ आपको are completely based on my personal experience, and please टेक दीज टिप्स एंड ये जो मैं एडवाइस देने लगी वेरी सीरियसली, बिकॉज ये बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टिप इज़ टू एंगेज विद योर फैकल्टी. सो बेसिकली जब भी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, यू हैव योर इंडक्शंस, यू हैव ओरिएंटेशंस, यू हैव इवेंट्स, यू हैव वेबिनार्स, यू हैव सेमिनार्स. आपकी क्लासेस होती हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं, आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, एंड देन यू हैव मीट एंड ग्रीट सेशंस. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट जब भी आप इन इवेंट्स में जाओ, प्लीज़ इंटरैक्ट with your faculty, get to know them, get to know about a lot many things from them because they are extremely knowledgeable, and जो वो knowledge आपको दे पाएंगे because they are currently in the business, वो आपको कोई भी book या कोई भी article नहीं दे सकता है. So you have to interact with them, and faculty Queen Mary की बहुत ज़्यादा friendly and supportive है, as I mentioned earlier. तो please be someone who is very open and very good with interacting with प्रोफेसर्स एंड योर ट्यूटर्स. मतलब ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप अपने प्रोफेसर्स और ट्यूटर्स के साथ इंटरैक्ट ना करो, उनसे बात मत करो. अलॉन्ग विद द फैकल्टी ऑल्सो इंटरैक्ट विद योर कलीग्स, विद योर सीनियर्स, विद योर जूनियर्स, बिकॉज उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव वाइडन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स एट यूनिवर्सिटी, बिकॉज उस टाइम पर आप काफ़ी सीख रहे होते हो नई जगह के बारे में, एंड जो वो टिप्स और एडवाइस आपको दे सकते हैं वो ही दे सकते हैं. मतलब बिकॉज दे आर मास्टर्स इन देयर फील्ड, तो वो उनसे अच्छी एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता. सो दैट इज़ द फर्स्ट टिप, दैट प्लीज़ engage with your faculty. Next up, a tip very similar to this is that please network as much as you can. Like आप किसी भी इवेंट में विजिट करते हो या कोई भी इवेंट आप अटेंड करते हो, प्लीज़ नेटवर्क विद as many people as you can. Please I would request all of you to make your LinkedIn accounts and उस पर try and connect with as many people as you can professionally, because उससे they'll be able to give you a fair idea of the market, and आपको और भी चीज़ें बहुत पता चलती हैं, like the latest developments in your field, वो आपको बहुत पता चलती हैं. Like this is not specific to law, but this is for anybody who is planning to pursue any course at QMUL. This is a very course generic advice that I am giving. Like this is a very generic advice जो मैं आपको दे रही हूँ, that please network as much as you can. Next up, try and join student societies. तो वहाँ पे आपको again that is a way of networking, making connections, meeting new people, getting to know different cultures. So try and join societies. I know बहुत tough होता है because you are trying to manage your studies, you are trying to settle in a new place, but try and join maybe one society, two societies, to be able to enjoy your university life to the fullest. Next up, please utilize the university resources. So as I mentioned कि मेरा main campus was in central London and main campus Mile End में था, तो university resources mainly हमें मेन कैंपस में अवेलेबल होते थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी रिसोर्स वाज द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी का जितना आप यूज़ कर सको QMUL की, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज द लाइब्रेरी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर लाइब्रेरी है क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कि आपका पढ़ने का मन करता है. इट इज़ सो प्रिटी, इट इज़ सो स्पेशियस, एंड इतना काम और इतना वो स्टूडियस सा माहौल होता है आपके आसपास, दैट यू रियली वांट टू स्टडी एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर स्टडी टाइम बेसिकली. सो उस मामले में प्लीज़ ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज. उसमें आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके जो आपको बुक्स डाउनलोड करनी है, जो आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, PPTs डाउनलोड करनी है, वो भी प्लीज़ करना. मतलब डू नॉट लेट गो ऑफ दोज थिंग्स वेरी ईजिली. नेक्स्ट अप, दिस इज़ अ वेरी senior to junior advice kind of a thing that I'm going to give you, and a very boring advice but a very important advice, which is to please stay organized. मतलब आप जितना organized रहोगे उतना आपके लिए better होगा. Like I completely understand because मैं उसी place से आ रही हूँ that once you visit a new city आपका बहुत ज़्यादा मन करता है to roam around, to meet new people, to make new friends, and to hang out
in a new city, like वो जो instant freedom मिलती है, I completely get that and you should make the most of it. मतलब आपको of course staying in your safety boundaries and safety limits, आपको घूमना भी चाहिए, you should make new friends, you should get to know people and all of that, but be organized, because बहुत बारी मैंने अपने बहुत colleagues के साथ ये problem देखी थी that exam time जैसे ही पास आता है या ऐसे submissions पास आती है, they panic because पहले वो सिर्फ trips और treks और उसमें busy रहे, and then I have seen people who have just been busy in essays and exams and all of that, and उन्होंने अपना 1-1.5 साल कुछ नहीं घूमा, सिर्फ पढ़ा. That is also completely wrong. So please choose a midway where you are able to balance your trips and your treks and your outings with your friends along with your studies, because both of them hold equal importance. Of course आप बाहर जा रहे हो, सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे हो, you want to make the most of your stay in a foreign country, so वो आपको ज़रूर करना चाहिए, but सिर्फ मज़े करने में अपना कोर्स मत पीछे छोड़ देना, because at the end of the day that is the main reason कि आप बाहर जा रहे हो. Next up, this is a very academic advice that I am giving you, which is an advice on division of credits. So basically जो I am just talking about law. So जो Master of Law की डिग्री थी उसमें we had to complete 180 credits. तो basically 180 credits का मतलब क्या होता है, that you have to complete 180 credits in a span of 1 year. So क्रेडिट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, दैट ईच मॉड्यूल और ईच सब्जेक्ट, इफ आई मे सो कॉल इट, इज अटैच टू अ सर्टन नंबर ऑफ क्रेडिट. तो बेसिकली जैसे आप मान लो कि आपका फैशन लॉ है, दैट इज़ 15 क्रेडिट्स, आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी है, दैट इज़ 30 क्रेडिट्स. तो ऐसे हर मॉड्यूल के साथ कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स अटैच्ड होते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आपको ऐसे मॉड्यूल्स चूज करने होते हैं दैट द टोटल कम्स अप टू 180 क्रेडिट्स. एंड जो डिविजन ऑफ क्रेडिट्स होता है दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. मतलब आपको कोई भी प्रोफेसर, कोई भी कलीग, कोई भी ट्यूटर फोर्स नहीं करता है कि आप अपने क्रेडिट्स कैसे डिवाइड करो. दैट इज़ कम्प्लीटली आपके दिमाग के ऊपर कि आपको कैसे डिवाइड करना है, एंड और आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको कैसे डिवाइड करने हैं क्रेडिट्स. सम पीपल गो बाय 60-60-60, तो वो मतलब आपका अपना हिसाब है जैसे आपको करना है. सो वो मतलब दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको डिवीजन ऑफ क्रेडिट्स अपने कैसे करने हैं. बट आई वुड स्टिल एडवाइस यू दैट द बेस्ट वे टू डिवाइड योर क्रेडिट्स इज़ 60, 75 एंड 45. द रीज़न बिहाइंड दिस इज जो मैंने किया था, लाइक आई डिड 60, 75 एंड 45. सो 60 credits I took in the first semester, second semester I took 75 credits, and then in the third semester I took 45 credits, जिसमें से 30 credits की डेजिटेशन थी. सो बेसिकली इन द फर्स्ट सेमेस्टर मैंने 60 credits इसलिए लिए थे बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू टू द कंट्री. आई वॉज डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. मुझे होम सिकनेस भी हो रही थी, मुझे घर की याद भी आ रही थी, मुझे घर का खाना भी याद आ रहा था, मुझे अपने लोग भी याद आ रहे थे. आई वॉज मिसिंग माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई कम्फर्ट जोन, माई होम. प्लस आई वॉज ट्राइंग टू सेटल इन अ न्यू प्लेस, न्यू अकोमोडेशन, ट्राइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ट्राइंग टू just in an absolutely different culture. So उस टाइम पे आई डिड नॉट वॉन्ट टू लोड माई सेल्फ अलॉट विथ स्टडीज़, बिकॉज मैं उस टाइम पे और चीज़ों से बहुत टैकल कर रही थी. लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस. सो वॉट आई डिड वॉज दैट आई चोज 60 credits बिकॉज आई थॉट कि 60 मुझसे फिर भी मैनेज हो पाएंगे, विच वॉज आई थिंक द बेस्ट डिसीजन दैट आई मेड इन माई लाइफ. नेक्स्ट अप आई टुक 75 credits for second semester because the reason was 75 of course was very hectic. I could have easily gone for 60, but as I mentioned मेरे last semester में I had a dissertation to complete, so I did not want to burden myself with बहुत सारे modules in the last semester because मुझे था कि मैं अपनी dissertation पे completely focus करना चाहती हूँ last semester में. So 30 credits की मेरी dissertation थी, and then I just had to tackle with a 15 credit module, which was not easy. No, it wasn't, but then that was the best way that I could divide my credits. But ये था कि अगर मैं जस्ट इमेजिन इफ आई हैड 2 credits 15 और जस्ट हैड 1 more credit which was 30 credits का, 1 more module which was 30 credits का, तो मैं पागल हो जाती अलॉन्ग विद डेजिटेशन लास्ट सेमेस्टर में. सो 75 credits मैंने कंप्लीट कर लिए अपने सेकेंड सेमेस्टर में. तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, दैट चंक लाइक द मेजर चंक ऑफ माई credits was done by semester 2.
And then semester 3 में I just had to tackle 45 credits, which was better, I would say, because dissertation did take a toll on my mental health after an extent. तो I was lucky enough to do just 45 credits and वो मेरे से better, मतलब वो मुझसे manage हो गया. Like I have a lot of juniors asking me कि credit division कैसे करें, and the only solution and the only tip that I tell them to do is go for 60, 75, 45. Like उससे ज़्यादा भी मत लो एक semester में, उससे कम भी मत लो. So yeah, so this is a very important टिप, मतलब आई थिंक ये आपको कोई नहीं बताएगा, एंड बट दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग टिप, आई वुड डेफिनेटली से दैट. नेक्स्ट अप, जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो आपके ओरिएंटेशंस और इंडक्शंस होती हैं. सो वो इंडक्शंस प्लीज़ अटेंड करो. लाइक आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ अटेंड दोज इंडक्शंस. अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आप वो इंडक्शंस क्यों अटेंड करो. बिकॉज जब आप वेन एवर यू विजिट न्यू यूनिवर्सिटी, आपको उस यूनिवर्सिटी का सिस्टम नहीं पता होता है, तो वो सिस्टम, वो एकेडमिक सिस्टम, वो ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता चलता है ओनली व्हेन यू अटेंड दीज इंडक्शंस. प्लस आपको मॉड्यूल अपने चूज़ करने में बहुत ईजी हो जाता है व्हेन यू हैव अटेंडेड दीज इंडक्शंस. बेसिकली इन दीज इंडक्शंस क्या होता है दैट द प्रोफेसर्स कम अप ऑन द पोडियम एंड दे टेल अबाउट देयर मॉड्यूल, कि वो मतलब दे टेल अ लिटिल अबाउट देमसेल्व्स, देन दे टेल कि वो कौन सा मॉड्यूल पढ़ाएंगे एंड हाउ दे विल बी टीचिंग इट, उसका मोड ऑफ असेसमेंट क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट गिव्स यू अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मॉड्यूल से. प्लस दैट गिव्स यू अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रोफेसर एज वेल, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है दैट वेदर यू आर एबल टू कनेक्ट विद द प्रोफेसर और नॉट. लाइक वंस आई रिमेंबर जब मैंने अपनी इंडक्शन अटेंड करी थी तो देयर वर सम मॉड्यूल्स जो मैं सोच के गई थी दैट आई विल टेक अप दोज मॉड्यूल्स, बट बाय द एंड ऑफ द इंडक्शन आई ड्रॉप्ड दोज मॉड्यूल्स. आई डिड नॉट वांट टू टेक देम बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द कोर्स जो उस मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है. आई थॉट इट वाज टू बोरिंग फॉर मी टू स्टडी. सो वो मेरा एक बहुत प्लस पॉइंट रहा वो इंडक्शन अटेंड करने का. प्लस आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द प्रोफेसर्स जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन होनी थी इन द मंथ्स टू कम. सो प्लीज़ इंडक्शन अटेंड करो. आई नो मोस्ट पीपल स्किप इट एंड दे थिंक कि कोई बात नहीं, हमें सब ऑनलाइन पता चल जाएगा, फ्रेंड्स बता देंगे, कलीग्स बता देंगे, बट नहीं, इंडक्शन अटेंड करो. लाइक अपने कोर्स की तो अटेंड करो ही करो. Next up, module selection. There are a lot of modules that you can choose from, as I mentioned in the starting minutes of the video. So please choose the modules very carefully. Module selection में of course मैं आपको कोई ऐसी advice नहीं दे सकती हूँ. Like I can't impose anything on you because it is completely based on your interest. आपके interest से related ही आप modules choose करोगे. But मैं आपको एक बहुत basic advice जो I think मैं दे सकती हूँ वो ये है कि आप please कोई भी वो module choose मत करना जो आप अपनी home country में भी पढ़ सकते थे. Like do not go for plain boring modules. Go for modules जो थोड़े से niche हों, जो थोड़े से different हों, जो आपने कभी सोचा ना हो कि अच्छा इसको मैं ऐसे भी फील्ड से लिंक कर सकती हूँ. जैसे I mentioned कि मैंने लॉ विद फैशन पढ़ा, लॉ विद म्यूज़िक पढ़ा, लॉ विद फिल्म पढ़ा, तो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. बट देन आई डिड टेक दीज मॉड्यूल्स. मैंने ये क्यों किया? बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू वाइडन माई होराइजन ऑफ थिंकिंग. तो मेरा उससे पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड हुआ अबाउट लॉ. एंड फिर मुझे बिकॉज मैंने ये मॉड्यूल्स चूज़ करे, मैंने ये मॉड्यूल्स पढ़े, उससे मुझे अपनी LLM वर्थ इट लगी. लाइक मुझे लगा कि मैंने कुछ नया सीखा, मैंने कुछ नया पढ़ा जो मुझे अपनी कंट्री में नहीं मिलता. सो एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम बाहर पढ़ने जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट गेटिंग दोज थिंग्स इन योर कंट्री, राइट. लाइक वो मॉड्यूल्स आपको अपनी कंट्री में कभी नहीं मिलेंगे. सो इसलिए आप स्पेसिफिकली बाहर जा रहे हो एट द फर्स्ट प्लेस. सो बी वेरी मेक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग योर मॉड्यूल्स. एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनिशियली जब आपको मॉड्यूल सिलेक्शन का नोटिस आता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यू हैव टू चूज़ द मॉड्यूल्स इन वन गो. लाइक आपको पूरे साल के मॉड्यूल्स इकट्ठे चूज़ करके यू हैव टू सबमिट दैट. पोस्ट सबमिटिंग दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर मॉड्यूल्स. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है, बट देन इट इज़ अ टास्क. सो वाइल यू आर सिलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग योर मॉड्यूल्स, प्लीज़ बी वेरी विजिलेंट, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, प्लीज़ मेक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि आपको यही पढ़ना है. लाइक डोंट चूज़ अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन इलॉजिकल रीजन्स. लाइक बी वेरी सर्टन ऑफ द मॉड्यूल दैट यू आर वेंचरिंग इन टू. नेक्स्ट आपके जो लेक्चर्स होते हैं विच आर ऑफ कोर्स टेकन बाय द प्रोफेसर्स, दीज आर रिकॉर्डेड. सो आई एम नॉट सेइंग दैट आप ये लेक्चर्स कंप्लीटली स्किप करो और रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही सुनो. ये गलती तो कभी मत करना. प्लीज़ गो एंड फिजिकली अटेंड द लेक्चर्स, बिकॉज जो आप फिजिकली जब लेक्चर्स अटेंड करते हो ना प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हो, उसमें जो आप सीखते हो वो कहीं आप
और मतलब वो आप वीडियोस के थ्रू या रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं सीख सकते. बट दिस टिप आई एम गिविंग फॉर एग्ज़ाम सीजन, बिकॉज जब आपका एग्ज़ाम सीजन होता है तो जब आपने नोट्स लिए होते हैं अपने ड्यूरिंग योर लेक्चर्स, बहुत बारी होता है दैट यू माइट हैव स्किप्ड ऑन सर्टन थिंग्स एंड आपको एग्जाम टाइम पे लगता है शिट यार मुझे अब ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा. सो उस टाइम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स कम एज अ सेवियर आई वुड से. लाइक मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने प्रोफेसर्स के खुद इतनी बारी लूप पे देखे हैं, स्पेशली सम सेक्शंस ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. अगर मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता था मैं एक बारी फिर सुन लेती थी. सो वो चीज़ है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स एक और चीज़ होती है, लेक्चर्स तो आपके होते ही हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट्स, लाइक वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक ऐसे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ट्यूटोरियल्स भी होते हैं. सो नाउ इन ट्यूटोरियल्स जो आपके उस साल के PhD स्टूडेंट्स होते हैं, दे टेक योर ट्यूटोरियल्स हु आर बेसिकली योर ट्यूटर्स. तो वो आपको गाइड करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन, अबाउट योर एसेज, अबाउट आप कैसे फेयरली अटैम्प्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स, आप अपने एसेज कैसे प्लान कर सकते हो. दे हेल्प यू विथ finalizing your essay topics and all of that. So please attend those tutorials because उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि tutorials are not recorded. तो आपको वो like you know that one-on-one chance to interact with your tutors आपको फिर नहीं मिलेगा. So please attend the tutorials as well. Now one more very important tip that I would like to give you is about dissertation. So dissertation is not mandatory. Like for some specializations it is mandatory, but for some specializations it is completely optional. So I did my specialization in IP law and उसमें dissertation was optional. However, I did choose dissertation because I was someone जिसको research करना पसंद है and you know all of that. So that is completely again your decision कि आपको dissertation लेनी है या नहीं. I am no one to force you or anything. बट अगर आप डेजर्टेशन ऑप्ट कर रहे हो तो बी वेरी श्योर दैट QMUL में क्या होता है दैट वंस यू सिलेक्ट दैट यू वांट टू डू अ डेजर्टेशन विच इज़ फॉर 30 क्रेडिट्स एंड डेजर्टेशन आपको लास्ट सेमेस्टर में आप चूज़ कर सकते हो. लाइक यू हैव टू सबमिट इट इन द लास्ट सेमेस्टर ओनली. ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले सेमेस्टर में डेजर्टेशन लिख के दे देती हूँ. नो, बिकॉज दैट इज़ अ 9-10 month प्रोसेस प्रॉपर. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें आपको एक मेंटर अलॉट होता है, डेजर्टेशन सुपरवाइजर आपका एक होता है जो आपको ऑन एंड ऑफ आपकी मीटिंग्स लेता है एंड आपको गाइड करता है अबाउट योर डेजर्टेशन. सो बी वेरी श्योर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज मीटिंग्स विद योर डेजर्टेशन सुपरवाइजर. इट इज द ओनस इज कम्प्लीटली ऑन यू टू ऑर्गेनाइज दीज मीटिंग्स. इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब आपको बस ये पता चल जाता है कि ये आपका डेजर्टेशन सुपरवाइजर है एंड देन इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू टू गो अप टू देम एंड ऑर्गेनाइज दीज मीटिंग्स, टेक देयर एडवाइस, उनके सजेशंस. सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. सो यू हैव टू बी आफ्टर देम एंड दे विल नॉट बी आफ्टर यू. सो कीप दैट इन माइंड. अगर आपको ये एक कॉमन डाउट है कि क्या मैं डेजर्टेशन लूँ या नहीं लूँ, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन not choosing a dissertation, but I would say that as someone who I did a dissertation during my undergrad as well, तो उससे मुझे रिसर्च वगैरह करने की काफ़ी आदत पड़ गई थी, which is one of the major reasons कि मैंने dissertation फिर से take up कर ली during my LLM. So if you are someone who likes researching, then only go for dissertation because dissertation is a 10,000 long essay that you are writing and 10,000 words is not a joke. And I'm very serious when I say this कि बैंड बज जाती है मतलब 10,000 वर्ड्स लिखते समय एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी ओरिजिनल. यू कैन नॉट डू एनी प्लैग वर्क देयर. मतलब आपकी प्लैग नहीं होना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज़ बी वेरी 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 श्योर व्हेन यू आर टेकिंग अप डेजर्टेशन. मैंने डेजर्टेशन इसलिए भी ली थी बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर माई मास्टर्स एंड आई रियली वॉन्टेड टू राइट अ गुड पीस ऑफ पेपर ड्यूरिंग माई मास्टर्स. तो मेरा वो भी वन ऑफ द मेजर रीजन्स था. नेक्स्ट अप अ वेरी कॉमन एंड वेरी बोरिंग टिप अलॉन्ग विथ स्टे ऑर्गेनाइज इज दैट प्लीज़ बैलेंस योर टाइम. आपको पता होना चाहिए कि कब आपके लेक्चर्स हैं, कब आपके ट्यूटोरियल्स हैं, कब आपका थोड़ा फ्री टाइम है, कब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हो, कब आपको स्टडी सेशंस कंडक्ट करने हैं, कब आपको ग्रुप स्टडीज़ करनी है. सो ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज़ बी वेरी ऑर्गेनाइज एंड प्लीज़ बैलेंस योर टाइम. मतलब इन्जॉय भी पूरा करो बट अपनी मास्टर्स डिग्री या जो भी आप डिग्री करने चाह रहे हो उस पर उस इन्जॉयमेंट का इतना इफेक्ट मत आने दो बिकॉज डोंट लेट योर स्टडीज़ गेट किसी भी तरीके से अपनी स्टडीज़ को हैम्पर मत होने दो बिकॉज ऑफ इन्जॉयमेंट. आई वुड से. नेक्स्ट अप
स्टे अपडेटेड ऑन द लीगल डेवलपमेंट्स। अगर आप स्पेशली लॉ में करने जा रहे हो या अगर आप किसी भी फील्ड में अपनी मास्टर्स करने जा रहे हो तो आप प्लीज़ अपडेटेड रहो विद द डेवलपमेंट्स इन योर फील्ड। नेक्स्ट अप, फॉलो क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उससे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो भी नए इवेंट्स या जो भी नए मीटअप्स हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में उसके बारे में आपको आइडिया मिलता रहता है। तो प्लीज़ फॉलो दीज social media platforms. Next up, by the end of each semester आपको एक feedback form आता है for each module. So you have to fill that feedback form and you have to submit it, and that is an anonymous form. उससे पता नहीं चलता कि किसने बुराई करी है किसने अच्छाई करी है. So please fill that form. वो basically is for your betterment as well as for the betterment of your juniors. So the university knows कि उनको कहाँ improve करना है, कहाँ they are lagging, कहाँ वो better कर सकते हैं and all of that. That feedback form in a very serious manner, मतलब बहुत seriously उसको fill करो, उसको don't just take it as a joke. Last important advice is that please enjoy your journey. मतलब you are going there to have the best time of your life. मतलब आप सिर्फ वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहे हो. You really want to enjoy that time in a foreign country. So please make the most of it. Please plan trips with your friends. Please hang out with your friends as much as you can, because वो memories आपको हमेशा याद आती है once you are back in your country or once you are out of university life. So please do that. Be like आपको जब भी टाइम मिलता है, like आपको लगता है ना कि क्लासेस के बीच में, एग्जाम्स के बीच में, लेक्चर्स के बीच में आपको टाइम मिल रहा है, प्लान अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद देम, छोटू छोटू कैफेज विजिट करो, एंड जस्ट हैव द best time of your life when you're going abroad, because that is again one of the major reasons की वजह से आप बाहर पढ़ने जा रहे हो. So don't just study and अपना पूरा वो एक साल पढ़ाई में मत निकालना, but do every possible fun thing as well. Next up and lastly, I would like to say कि जो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्टडी अब्रॉड का एक्सपीरियंस वर्थ इट था या नहीं, सो आई वुड से येस, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. अपार्ट फ्रॉम कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर लोग कहेंगे कि ओहो ये बाहर से पढ़ के आई है, दैट आर सेपरेट इशूज़. लाइक दोज आर इशूज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, तो वो बहुत होती है whenever you go to a foreign country. You learn about new cultures, you become independent, you become confident and all of that. आपको इतने लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, इतने कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है, इतनी फ्रीडम मिलती है आपको दैट यू एन्जॉय. सो उससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होती है. लाइक आई हैव पर्सनली सीन गुड चेंजेस इन माई सेल्फ. लाइक आई हैव बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट, आई हैव बिकम मच मोर वोकल. वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है विच यू रियलाइज ओवर टाइम. लाइक उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, आई एम द सेम पर्सन, बट नो, once you come back and once you complete your university life, once you are towards the end of your university life, you realize that maybe you are now a better person, a changed person. Like अच्छे के लिए आप बदले हो, like you have literally improved as an individual. So I would say definitely if you ever plan on studying abroad, it is definitely a thumbs up from my side. Go ahead with it, enjoy your journey. Challenges भी आएंगे, वो भी face करो, उससे भी सीखो, meet new people, make new friends, have your fair share of experiences, because that combined package is something that you will carry in your memories for the rest of your life. And those beautiful memories are something जो मैं आज भी cherish करती हूँ. Like I really miss the times when I used to hang out with my friends. मैं lectures attend करती थी, हम group studies करते थे, trips plan करते थे, cafes visit करते थे. I really miss those days. I really miss those days जब हमारे webinars, seminars होते थे, हम events attend करते थे. We were running from 9 to 5. हमारे events, उसके बाद 5 o'clock हम coffee grab करें, and then we are again heading back to the event. So all of those things I really miss, and I really feel that over time that all those things जो मैंने experience करी did bring a lot many positive changes in me. मतलब वो मुझे अब feel होता है like धीरे धीरे those changes are kicking into me, and धीरे धीरे मुझे भी realize हो रहा है that yeah, I have changed for the better. So I would definitely say that if you are someone who is planning to go abroad, to study abroad, please give it a major thought, and please give it a positive thought, I'll say. मतलब आप सोचो कि yeah, you have to go and you have to do it.
So this is my entire summary of my journey at Queen Mary University of London. I hope you found the video useful. Please take these tips and tricks very seriously whenever you are planning to pursue your degree at Queen Mary University of London. In case you have any doubts, any doubts, no doubts are stupid. So if in case you have any doubts, please feel free to reach out to me in the comments down below. I'll be so happy to answer any of the questions that you might have. Yeah, so I'll see you guys in the upcoming videos. Please like, share, comment and subscribe. Please drop down any video ideas that you might have and मैं definitely वो बनाने की कोशिश करूँगी. Please love me, please support me, and I absolutely love you guys. Bye bye, take care.